Okay, I'll just read out the questions you all have sent. In case you still want to add something, tell me, but let me read out the questions. Then I'll give you a bit of my understanding on the quality of your questions. And then I'll tell you what are the requirements of SSB. And then I'll tell you briefly how to get them over. And then thereafter, we will have a question answer sessions. And we will have individual meetings with Aspriya, yours, and we have, who's the other girl here? Gitanjali. Okay? Gitanjali and Aspriya, we will have one-to-one at the end. And whatever questions you ask, that will be beneficial for all. Is that clear? Okay. Somebody who calls himself Villain, I don't know what's his name. He says his question is the activity in sports, dramatics, debates very important to join the NDA, to clear the SSB? And second question is, how to write an action title of PPDT? Question understood? Okay. Second question is on Sonali. I'll answer them together at the end. She says, are the hobbies and interests important? I don't have any hobby and any interest. Will I be able to make it for SSB or not? Second question of hers is, how do you develop the organizing capability in yourself? She said, I want to organize a cricket tournament, but how do I go about it? And third thing is, she says, I am not able to initiate a talk with others. So what are the ways wherein I can start initiating a talk with the others? Questions, all three questions understood from Sonali? Okay. Sir, these are my questions, sir. Who are you? Name? Shivani, account, sir. Okay, fine. Good. Keep your questions. I'll answer them. Okay. Then there's somebody called Singh. He says, how to go about doing group discussion. वहाँ पे fish market होती है, and how do you survive in that fish market? You're right. Question is genuine. Okay. Then is somebody called Rupi. He or she says, कि how do you develop OLQs? I had said that OLQs are the most important things, and her question is, how do you develop those OLQs? And let's try to channelize our preparation from the SSB with the OLQs in a manner that is needed over there, so that we don't beat around the bush. Very correct and very genuine sentiment. I will tell you how to do that. Okay. Then she also said that she wants to go for, I think she's class 9 student, if I'm not wrong. She wants to crack the NDA examination, that is a written exam, then the SSB and other things. So she says how to make a daily routine. I'll answer this question also at the end. The next question was, Deen Bandhu Mishra, are you here? He had almost half an hour talk with me yesterday on phone, but he is not attending the Zoom meeting. Anyway, he can see the recording, I'll tell him later. Okay, his question is, I am from a rural area. Am I fit to clear the SSB? Can I do it or not? And what should be my strategy? And second thing is, how do I develop my communication skills? How do I develop my OLQs? Now, these are the questions which I have. Now, let me tell you broadly, I'll answer all of them in one go, and one by one we'll talk about it later. मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में फियर्स हैं. फियर्स आप समझते हैं? आपको एसएसबी के बारे में पता है और आपने एसएसबी के बारे में सब लोगों से इन्फॉर्मेशन जानने की पूरी कोशिश की है, और आपको एक छोटे छोटे टिट्स बिट्स इधर उधर से पता कर रहे हैं, और आपके पास जो नॉलेज है वो एक नॉलेज एज ए होल नहीं है. आपके पास छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपने यहाँ वहाँ से गैदर करी हैं, और अभी तक आपने पूरी पिक्चर आपकी बनी नहीं है. इसलिए ये आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन की वजह से आपके माइंड में फियर आ जाता है, फियर ऑफ अननोन. कि अगर ये पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए, जो मैं अभी क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और आप मेरे से क्वेश्चंस पूछिए, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से सवाल पूछिएगा, तो ताकि आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए. एक बारी आपको ये सारा का सारा जो गैमेट है, जो सारा सिस्टम है, आपकी समझ में आ जाएगा. उसके बाद आप बड़ी आसानी से एक अपना प्रोग्राम या एक मैनेजमेंट प्रोग्राम या एक टाइम मैनेजमेंट करेंगे, या अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे कि मुझे अब ये इस तरीके से
स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। जैसे ही वो हो जाएगा तो आपका ये फियर था वो सारा का सारा दूर हो जाएगा और सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास है। जब आपको सब कुछ मालूम है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो उसको जानने के लिए आई एम श्योर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एम आई राइट? ओके, देखो एसएसबी में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अब इंटेलिजेंस को मार्क करिए। इंटेलिजेंस मीन्स आईक्यू, और आईक्यू का मतलब जब होता है, आईक्यू का मतलब आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स ही नहीं हैं। मार्क्स एक छोटा 5% 10% कॉम्पोनेंट हो सकता है। तो जब मैं आपसे आईक्यू की बात करता हूं उसका मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर कितने आए हैं। नंबरों का आईक्यू के साथ कोई महत्व नहीं है। टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप आइंस्टाइन को जानते हैं, आप नोबेल प्राइज विनर जानते हैं? तो अगर आप आइंस्टाइन को बोलते कि आप एक शेक्सपियर की तरह बढ़िया नॉवल लिखिए तो क्या वो लिख पाते? अगर उनको आप एग्जाम देते एक लिटरेचर का तो पक्का फेल हो जाते हैं ना। बट डज दैट मीन कि आइंस्टाइन की आईक्यू नहीं थी? एम आई राइट? कैन यू अंडरस्टूड? सिमिलरली आप शेक्सपियर को बोलते कि जी हमको आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाइए और उस पर हम आपका एग्जाम लेंगे, तो उनके मार्क्स आते क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आईक्यू दोनों की है एंड वेरी हाई क्वालिटी आईक्यू है। एक बहुत बढ़िया नॉवल लिख रहा है, लिटरेचर लिख रहा है, दूसरा बहुत बढ़िया फिजिक्स की बात कर रहा है। सो बोथ आईक्यूज आर सुपरलेटिव। बट अगर उनको रॉन्ग सब्जेक्ट के अंदर आप उनको एग्जामिनेशन देंगे तो उनके मार्क्स नहीं आएंगे। तो मार्क्स हैव गॉट अ 5% और 10% वेरी वेरी मिनिमल बेयरिंग ऑन योर आईक्यू, which is the first prerequisite for the NDA, that is the SSB. Okay? अभी इस IQ को कैसे जज किया जाता है? IQ के लिए एक साइकोलॉजिस्ट ने एक टेस्ट बनाया हुआ है जिसमें कुछ वर्बल और कुछ नॉन वर्बल फिगर्स आपको दी जाती हैं, कुछ सीरीज लिखी जाती हैं, जो आप किसी भी अच्छी गाइड को ले लीजिए, जो NDA या CDS के या किसी भी UPSC के किसी भी एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर, आपके IAS का एग्ज़ाम है या डिफरेंट अदर्स जो UPSC एग्ज़ाम्स करता है, तो आपको IQ के जो रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल के जो टेस्ट होते हैं उसकी आपको गाइड मिल जाएगी और उसमें आपने सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और उसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम आपको एक IQ में वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का एक टेस्ट दिया तो आपके 100 में से 30 नंबर आए मीन्स आपकी IQ ख़राब है, नहीं। उसका मतलब ये है कि जो उसमें जो सिस्टम है एग्जामिनेशन का, आपकी उससे भी फेमिलियरिटी नहीं हुई है, आपको वो सीक्वेंसेस कैसे बन रही हैं, आपको उसका कोड समझ में नहीं आया है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कोड आपकी समझ में आता जाएगा और आपके मार्क्स का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी जब वो आपको असेस करते हैं तो लेवल 1 2 3 4 5 होते हैं। 5 फेल मानते हैं, 50% एंड बिलो। 4 तक चल सकता है बट 3 तक एक्सेप्टेबल है। ओके, तो उसके जो भी परसेंटेजेस उन्होंने निर्धारित कर रखी हैं कि 90% मार्क्स आते हैं तो लेवल 1 है, 80% आते हैं तो 2 है, 70% आते हैं 3 है, तो ऐसे करके उन्होंने रखा हुआ है। तो मोस्टली क्या है, वो आपको लेवल 3 तक आपको एक्सेप्ट करते हैं, मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो आपको लेवल 4 में भी ले लेंगे। परंतु लेवल 5 में अगर आपका आता है तो आपको नहीं आना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है। अगर आप लेवल 5 के मगर मार्क्स अगर आपके कम आते हैं इसमें, इसका मतलब ये है कि आपको जो उन सीक्वेंसेस की जो कोड है वो आपको समझ में नहीं आया। और वो समझ मेरे ख्याल में अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो वो समझ आपके आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? उसके लिए आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है जो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। बट ये सारी प्रैक्टिस आपने अपने लेवल पे खुद ही करनी है, इसमें आपकी कोई कोचिंग ट्यूटरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इज दैट वेरी क्लियर इन यू? द फर्स्ट पार्ट इज योर इंटेलिजेंस, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, और ये सारे के सारे जो प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप बाज़ार से गाइड खरीदिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और या फिर आप इंटरनेट पे इसको डाउनलोड कीजिए। तो किसी भी तरीके से आप करिए,
आप कम से कम दिन में 1 घंटा इस पर लगाएं तो विद इन 1 मंथ यू विल बिकम अ वेरी वेरी फास्ट गाय टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंसिंग्स, कि अगर आपको वर्बल है या नॉन वर्बल है या इसकी न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस हैं, कि अगर सीक्वेंस है 1 3 5 7 और आगे डैश, अगर ये ऑल्टरनेट नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है 1 3 5 7, तो नेक्स्ट इज 9, दैट इज द आंसर। अगर आपने उसको एक एरो दिखाया है पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सेकंड एरो इज पॉइंटिंग ईस्ट, थर्ड एरो इज पॉइंटिंग साउथ, तो नेक्स्ट एरो विल बी पॉइंटिंग वेस्ट। हैव यू अंडरस्टूड? सो दीज आर द सीक्वेंसेस विच हैव टू बी डिकोडेड, कि आपको एक दिया स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, सो 1 4 9, तो स्क्वायर ऑफ 4 शुड बी 16, सो 16 शुड बी द नेक्स्ट आंसर। तो आर यू क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? No doubts? So this you have to practice. You have a problem, come back to me. Okay, next requirement जो है, ये अभी मैं requirements की बात कर रहा हूँ। Next requirement ये है कि जब आप वहाँ जाते हैं तो you should be able to communicate. आपको बोलना आना चाहिए, आप चुप नहीं रहने हैं, चाहे आपने अपने फेलो कैंडिडेट्स के साथ बोलना है, या फिर आपने अपने असेसिंग ऑफिसर्स के साथ बोलना है, या फिर आपने सपोर्ट स्टाफ जो आपको रेलवे स्टेशन पे लेने आया है, या आपको जहां आपकी लिविंग बैरक्स हैं वहां पे जो स्टाफ आपको बेड अलॉट कर रहा है, लॉकर अलॉट कर रहा है, आपको कुछ बेडिंग्स दिया जा रहा है, कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, या उसके बाद डाइनिंग हॉल में आप खाना खाने जा रहे हैं, तो आप उन लोगों से अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाने चाहिए। अगर आपको बोलने में डर लगता है, अगर आप शाई हैं, तो अपने शाइनेस आपने बाहर निकाल के जानी है। तो सेकंड पॉइंट इज योर communication skills. How to do those communication skills? Again, I'll teach you later. But abhi understand, after intelligence, you must also have good communication skills. और अगर इसमें अंग्रेजी जो है, पर से अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि एसएसबी का जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश में होगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। और टेक्निकली स्पीकिंग कोई आपको इस पर रिजेक्ट भी नहीं करता। पर यहाँ एक घुंडी है। हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं उसका नाम है इंडिया, और हम लोग कई साल गुलाम रहे हैं अंग्रेज़ों के, और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश का माइंडसेट है। तो इंग्लिश जानना, अच्छी इंग्लिश बोल पाना इज़ डेफिनेटली एन एडवांटेज। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं आज की डेट में, तो इसको डिसएडवांटेज भी मत लीजिए। आप कोशिश करिए इसको डेवलप करने की, और अगर मान लो डेवलप करते करते आप उस लेवल पे नहीं पहुंचते हैं कि आप फराटेदार अंग्रेज़ी बोलते हैं, अगर नहीं भी बोल पाते हैं, बोलते समय मान लो लेक्चरेट में हैं, ग्रुप डिस्कशन में हैं, आईओ के सामने बैठे हैं, तो अगर आप वहाँ पे कम्युनिकेट करते करते मान लो आपको कोई अंग्रेज़ी का वर्ड नहीं याद आ रहा है, या आपके दिमाग आप कहीं रुक रहे हो, तो आपने अपने मुँह को नहीं रोकना है, मुंह को चलने देना। आप वहाँ पे अपनी हिंदी डाल दीजिए, आप वहाँ अपनी तमिल डाल दीजिए, वहाँ अपनी मलयालम डाल दीजिए, बंगला डाल दीजिए, असमीज़ डाल दीजिए, पंजाबी डाल दीजिए, गुजराती डाल दीजिए, मगर डालने के बाद फटाफट वापस अंग्रेज़ी पे आइए, क्योंकि वो जो असेसर आपके सामने बैठा हुआ है, हो सकता है उसको बंगला नहीं आती हो, उसको तमिल नहीं आती हो, शायद हिंदी भी नहीं आती हो। तो उस केस में जितनी जल्दी हो आपने वापस इंग्लिश को स्विच करना है। तो पॉइंट आई एम मेकिंग ओवर हियर इज कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, बट अगर बाई चांस आप, जैसे इन्होंने लिखा कि मैं रूरल एरिया का हूँ, आई एम श्योर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम समझ के अपने आप को फियर ला करके पीछे नहीं खींचना है। अगर वो मान लो कहीं पे स्टम्बलिंग ब्लॉक पे आप इंग्लिश में स्टकअप होते भी हैं, तो भी आप अपनी नेटिव लैंग्वेज करके वहाँ से सिचुएशन से बाहर निकलिए और वापस इंग्लिश पे स्विच करिए जितना जल्दी हो सकता है। इज दैट पॉइंट अंडरस्टूड? सो दैट इज द सेकेंड क्वालिटी यू मस्ट हैव। ये आपने घर बैठे आपने तैयारी करनी है इसकी। बाकी जो टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा अपनी। मैंने आपको बोला था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है मेरे पास, NLP की, जो साइकोलॉजी की एक बड़ी अच्छी ब्रांच है, और उससे काफ़ी लोगों का भला होता है और आपका भी होएगा विदाउट एनी डाउट्स। तो दिस इज द सेकेंड इशू विच यू मस्ट हैव इन अ वेरी गुड मेजर। ओके, थर्ड थिंग जो आपको पता होना चाहिए SSB के दौरान में, आपको आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको मालूम होनी चाहिए। और आज अगर आपको नहीं मालूम है, जैसे गीतांजलि, मालूम तो है ना कोविड चल रहा है,
बट यू जस्ट सेड कि मुझे नहीं पता. नाउ दिस शोज योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को इतना बड़ा वो गुनाह भी नहीं है, इतना कोई जुर्म नहीं है जो आपने किया है. अभी दिल में ये लेके नहीं बैठना है कि अगर मुझे पता नहीं था तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा. दिस इज़ नॉट अ बिग जुर्म आज की डेट में. बट व्हेन यू गो फॉर द एसएसबी यू शुड बी अप विद इट. और उसका तरीका बड़ा सिंपल है. मैं आपको बोलूँगा स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, स्टार्ट रीडिंग कंपटीशन सक्सेस रिव्यू काइंड ऑफ मैगजीन्स. आप बोलोगे एक और काम दे दिया, यही बोलोगे ना. पहले ही पढ़ाई कर रहे थे और बोला और पढ़ाई करो, तो पहले ही बोर हो रहे हैं पढ़ पढ़ के और पढ़ाई करो, तो फिर क्या हो सकता है. आप टीवी के आप वीडियो गेम्स खेलते हो, टेलीविजन पे सास बहू के सीरियल्स देखते हो आकांक्षा? No, sir. देन व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू वॉच ऑन टेलीविजन? Mostly, sir, by going on preparation, so that's why I'm mostly Okay, now I'll tell you. series like Pradhan Mantri and Okay, good. All of you watch Saas Bahu ke serials. I have nothing against it. You want to play video games, do for all that. By all means, do it. But give some time, at least half an hour in a day, watch news. Okay, good. Now, good. What I am recommending to you all is you must watch Beyond News channel, especially when Palki Sharma Upadhyay is as an anchor. But she comes up with a good news about the world and she gives good analysis also. And make sure when you sit on the in front of the television, you have a paper and a pen in hand. And there's nothing to feel shy about it. I at this age, हालांकि मुझे कोई एसएसबी के लिए नहीं जाना है, किसी इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है, पर जब मैं भी टीवी के सामने बैठता हूँ, वियॉन चैनल वॉच करता हूँ, मेरे हाथ में मेरा राइटिंग पैड और पेन होता है. एनीथिंग इंपॉर्टेंट, पलकी शर्मा उपाध्याय टॉक्स, यू नोट इट डाउन. आप सिर्फ इतना करेंगे और इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज, जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी, साथ में आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी. अगर वही इंग्लिश जो आप सुन रहे हैं उसी को जब आप बोलने की कोशिश करेंगे, जो आपने पॉइंट लिखा है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव होती चली जाएगी. ये समझ गए आप बात? ये तो एसएसबी के लिए जो प्री रिक्विजिट क्वालिटीज़ हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए, मैंने बोला पहली है इंटेलिजेंस. हाउ टू प्रैक्टिस फॉर दैट इंटेलिजेंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू. दूसरी मैंने आपको क्या बोला था, कम्युनिकेशन स्किल्स. उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है और कम्युनिकेशन स्किल्स बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, और उसका जो डिटेल में वीडियोस हैं वो मैं बाद में भी दिखाऊंगा. तीसरी चीज़ मैंने आपको बोली आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज. और जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने आपको क्या बोला है, आपने टेलीविज़न देखना है और उसमें न्यूज़ चैनल देखनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वियॉन न्यूज़ देखनी है, और यहाँ टाइम्स नाउ या दूसरी चैनल्स भी देख सकते हैं. बट दिस इज़ हाउ यू इम्प्रूव योर नॉलेज. यू मस्ट सी टेलीविज़न एवरी डे. और जो भी न्यूज़ आपको सुनाई वहाँ पे आती है नज़र, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, चाइना की है, यूएस की है, इकोनॉमी की है, क्रूड ऑयल की बात हो रही है, स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, वहाँ पे प्रधानमंत्री के लॉकडाउन की बात हो रही है, जो चीफ मिनिस्टर्स के हर इंडिविजुअल स्टेट में उन्होंने नए नए तरीके अपना रहे हैं उनकी बात हो रही है. जैसे उन्होंने डिसैनिटाइजेशन टनल्स बनाई हैं. अभी माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम है, उनको घर भेजने के लिए बसेस का इंतज़ाम हो रहा है. जो लॉजिस्टिक्स हैं उसके लिए ट्रेन्स चल रही हैं, हवाई जहाज़ चल रहे हैं, बाकी ट्रांसपोर्टेशन बंद है. क्वारंटीन सेंटर्स हैं, तबलीगी जमात में कुछ प्रॉब्लम है. तो यही चीज़ें आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर जब आप उसके सामने बैठेंगे तो आपसे इन्हीं के बारे में वो डिस्कस करेगा. तो यू मस्ट हैव एन ओपिनियन ऑन दैट. ठीक है? तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये आपकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज विच इज़ इंपॉर्टेंट इज ग्रुप डायनामिक्स. यानी कि आप लोग, आप अभी मुझे आप क्या करना चाहते हैं एसएसबी क्लियर करके? यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन द आर्मी, एम आई राइट? आर्मी में जो ऑफिसर है उसका क्या काम है? ऑफिसर ही बनना है अगर आपने, तो आप आईएएस ऑफिसर बनिए, आईपीएस ऑफिसर बनिए, या सिविल में जाइए, किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनिए, किसी कॉरपोरेट में ऑफिसर बनिए, या किसी मान लो क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनिए. ऑफिसर तो कहीं भी बन सकते हैं आप. आर्मी ऑफिसर में क्या खास बात है जो बाकी में नहीं है? आर्मी ऑफिसर में ये खास बात है कि आर्मी ऑफिसर जो है उसके पास
एक मिशन होता है, हमारा मिशन है टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ आवर नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, कि बाहर की शक्तियों से अगर हमारे देश के ऊपर आक्रमण होता है तो हमने अपनी जो बॉर्डर्स हैं, अपनी बाउंड्रीज हैं, उनको डिफेंड करना है। और उसमें कई बार हमको अटैक भी करना पड़ता है, डिफेंड भी करना पड़ता है। फिर हमारे पास और बहुत सारे रोल्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के रोल्स हैं, मतलब हर जगह पे हमारे पास मिशन है। अब मिशन जो है उसका मैं एज एन ऑफिसर, आप अगर कल को ऑफिसर बनते हो तो आप उस मिशन जो करने के लिए आप इंचार्ज हो उस मिशन के, और उसको पूरा करने के लिए आपको एक टीम दी जाएगी, जवानों की, जेसीओज की, जूनियर ऑफिसर्स की, जो आपसे जूनियर होंगे। तो आपकी एक टीम है, तो आप बेसिकली ऑफिसर कम और एक टीम लीडर ज़्यादा हैं। ऑफिसर और टीम लीडर में बेसिक फ़र्क ये है कि ऑफिसर एक अथॉरिटी के साथ चलता है कि मैं आज मान लो आईएएस ऑफिसर हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूँ, मेरा ऑर्डर है कि ये होगा, तो लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी होती है, कुछ मस्ती मारते हैं, काम हुआ नहीं हुआ, नोबडी इज़ इम्पॉर्टेंट, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं हो जाता है। मगर मान लो पाकिस्तान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया है, आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर को यानी कि उसकी जो सैंक्टिटी को ख़राब कर दिया है, तो आपने तो अपने आप को डिफेंड करना है ना। तो यहाँ पे तो आपको 100% रिजल्ट चाहिए। आप नहीं बोल सकते कि भाई ठीक है पाकिस्तान आधा अंदर आ गया आधा बाहर है, मैंने किया बट हुआ नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो आपने अपनी उस टीम को लीड करना है, दैट मीन्स यू आर अ लीडर। और लीड कहाँ करना है? लीड आपने उस टीम को करना है व्हेन एनिमी फायर इज कमिंग, सामने से गोलियां चल रही हैं, ऊपर से आर्टिलरी के गोले बरस रहे हैं, हवाई जहाज़ों से गोले बरस रहे हैं, जहाँ पे आदमी की जान का नुकसान है, तो आपने उनको वहाँ लीड करना है। तो आप उनको जब बोलोगे भैया चलो, वो तो बोलेंगे साहब माफ़ करो, हमको तो डर लगता है हमारी जान चली जाएगी। सिविल में तो ऐसे ही बोलेगा ना वो, पर आर्मी का जवान नहीं बोलता ऐसे, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरा लीडर है, ये मेरा ऑफिसर नहीं है। और ये सब जो मैंने एस्पेक्ट है, ये मेरे वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए, उसमें ये एक लीडर है, वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है, मैनेजमेंट लेसन इन द आर्मी, तो आप उसको अगर देखेंगे तो आपको ये एस्पेक्ट समझ आ जाएगा। अभी मोटे तौर पे भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके साथ एक ग्रुप है जिसको आप लीड कर रहे हैं, तो अगली क्वालिटी जो आपके अंदर देखी जा रही है वो देखी जा रही है कि आप जब ऑफिसर बन जाएंगे तो आप एक ग्रुप को लीड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वहाँ पे कैसे डिफेंड करना है या कैसे अटैक करना है या उस मिशन को कैसे अकम्प्लिश करना है, वो आपको सिखलाया जाएगा। जब आप एकेडमी में जाएंगे या आर्मी में इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, सिखाएंगे। अभी आपको देखा जा रहा है कि उस ग्रुप डायनामिक्स में जब आप उस ग्रुप में हैं तो आप एक लीडर बन के उभरते हैं कि नहीं उभरते हैं। तो ये है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। पहली वाली 3 क्वालिटीज़ मैंने बताई थी आपकी, वो आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ थी। और यहाँ पे आपकी जो है आपकी इफेक्टिवनेस देखी जाएगी टू लीड अ ग्रुप। तो वो ग्रुप को कैसे लीड करना है ये आपको चेक हो रहा है। तो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप में होनी चाहिए। अच्छा, अभी जब इनको आप जब एसएसबी में चले जाते हैं तो वहाँ जाकर के जो आपके असेसर होते हैं, आपको कुछ लोग जो आज पहली बार ही आए हैं उनके लिए मैं रिपीट करूँगा, तो उन्होंने बोला कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसी तरह से इन चीज़ों को, इन 4 चीज़ों को अकम्प्लिश करने के लिए, अब इनको टेस्ट भी करना है ना, टेस्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। कैसे टेस्ट करेंगे अदरवाइज एसएसबी वाले, उसमें कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। अब पैरामीटर्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि 15 क्वालिटीज़ हैं जिसको हम मोटे तौर पे बोलते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, 15 क्वालिटीज़, और उनको 4 भागों में बांट दिया है। बोला फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 एंड फैक्टर 4। अभी ये फैक्टर 1, 2, 3, 4 कैसे हैं आपने इसको कोरिलेट करना है, जो मैंने अभी आपको 4 चीज़ें बताई हैं, जो मैंने बताई थी, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, योर जनरल अवेयरनेस और ग्रुप डायनामिक्स में एज अ लीडर, ये 4 चीज़ें बताई थी। अब इन्हीं 4 चीज़ों को हम कोरिलेट करते हैं कि उन्होंने एसएसबी में आपको जब टेस्ट करना है तो वो 4 फैक्टर्स क्या बता रहे हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, कि आप किसी चीज़ को कैसे प्लान कर सकते हैं और या कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ही आपको मिशन दे दिया गया जो लड़ाई में आपको मिलेगा, मान लो डिफेंड करना है या अटैक करना है, और मगर अगर आप मान लो आज तो आपको नहीं मालूम डिफेंड कैसे करना है, अटैक कैसे करना है, बट अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी हो कैसे टेस्ट करनी है, तो वो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी है कि नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको प्रॉब्लम दे दी, एंड प्रॉब्लम कैन बी एज सिली एज कि मुझे सुबह स्कूल जाना है, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था।
तो अगर आपने अभी आप आज लॉकडाउन में बैठे हुए हो, कल को आपने स्कूल या कॉलेज में जाना है कि 9 बजे सुबह जाना है, तो कल को बोल दिया कि मंडे को 4 मई को योर स्कूल इज ओपनिंग एट 9 o'clock। नो, दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि आप 9 बजे अगर मंडे को मुझे स्कूल जाना है तो आई शुड डू सम प्रेपरेशंस फॉर दैट। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ योर्स कि आपके जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की जो फैक्टर 1 की क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या मैं अभी बताऊंगा, बट बिफोर दैट आई विल जस्ट टेल यू हाउ डज इट मैटर, हाउ डज इट इफेक्ट। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि टुडे आफ्टर लॉकडाउन, सपोज योर स्कूल और कॉलेज और ऑफिस वेर एवर यू हैव टू गो, you are told that it will open at 9 o'clock. Now this is also a problem and you should be able to analyze this problem, and fortunately unfortunately आप ये problems को रोज़ solve करते हो, पर आपको लगता है कि एसएसबी में जा रहे हैं तो ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, ये तो हमारी है ही नहीं, और वहाँ तो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें पूछी जाएंगी जो हमको पता नहीं है। वो आपकी गलती है। एसएसबी के अंदर भी जब जाओगे मैं आपको बताऊंगा कि चाहे वो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, चाहे आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है, इवन फॉर दैट मैटर आपका जो साइकोलॉजिस्ट है, वो भी आपको ऐसी ही छोटी सी एक प्रॉब्लम देगा और उस प्रॉब्लम को आपने प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज करना है, प्लान करना है, उसके बारे में ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोला कि अभी 3 मई को लॉकडाउन खुल रहा है, 4 मई इज़ मंडे मॉर्निंग 9 o'clock आप सब लोगों को स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है, तो डोंट यू नीड सम प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, इजंट इट? सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। उसके लिए पहले आपके पास फैक्टर 1 में पहला क्वालिटी क्या था? इंटेलिजेंस, IQ, कि आपके पास IQ है, मीन्स आप समझ रहे हैं कि मेरे को मंडे को जाना है। वो तो तभी समझ में आएगी अगर आपके अंदर दिमाग ही नहीं होगा, इंटेलिजेंस नहीं होगी, तो आपने 9 बजे 4 मई को कहाँ जाना है? अंडरस्टूड? द वेरी फैक्ट दैट यू नो दैट यू हैव टू गो टू द ऑफिस मीन्स इंटेलिजेंस इज देयर, दैट इज द फर्स्ट थिंग। आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है OIR, दैट इज व्हाट इज टेस्टिंग योर IQ। हैवंट आई हैव डिस्कस दिस विद यू जस्ट 20 minutes बैक। यार इतनी जल्दी भूल गए आप लोग? मैंने आपको क्या बोला था? इंटेलिजेंस कैसे टेस्ट होती है, then is your communication, then is your general knowledge, and then is your group dynamics. Haven't I told you? भी ठंडा है, मम्मी चाय ठंडी होगी, क्या कर रहे हो, स्कूल बस नहीं पहुंची, ड्राइवर कहाँ है, ओ मेरा स्कूल बैग कहाँ है, तो अपने शोर मचाया हुआ है, रोना पीटना मचाया हुआ है, तो ये आपकी लाइवलीनेस नहीं है। तो आपके जो ग्रुप में आपके मदर, फादर, ब्रदर, सर्वेंट जो आपके आसपास जो आपके ग्रुप में हैं, ये इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं, बट आपकी लाइवलीनेस नहीं है, तो आपसे दुखी हैं। यार कैसा लीडर है ये हमारा कि मैंने आपको बोल दिया आगे चलने के लिए, पर दुखी होकर बोल रहा हूँ मैं, और खुद डर डर के बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस भी दिखा रहा हूँ, इनिशिएटिव भी दिखा रहा हूँ, बट मुंह पे मेरे पे वो है नहीं, वो लाइवलीनेस नहीं है। तो ये हैव यू अंडरस्टूड दिस कैपेबिलिटी? हसप्रिया, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, तो इसी तरह से ये 3 फैक्टर्स है। फैक्टर 4 इज योर डायनामिज्म, एंड विच इज द फर्स्ट वन? डिटर्मिनेशन। हमने दुश्मन को फलानी पहाड़ी के उस पार रोकना है, मैं वहाँ पे डिफेंसिव पोजीशन लूँगा, मुझे वहाँ पे रोकना है, हर हालत में रोकना है, किसी भी तरीके से दुश्मन आगे नहीं आ पाएगा। वो मैंने अपने ग्रुप को बोल दिया है, वो डिटर्मिनेशन मेरे अंदर है। दुश्मन कितने भी गोले फेंके, कितना कुछ भी हो, ठीक है, मुझे स्कूल 9 बजे पहुँचना ही है। अगर ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है, मम्मी की गैस ख़त्म हो गई है, डजंट मैटर, मैं दूध गर्म नहीं करके पीऊँगा, मैं ठंडा ही पी के जाऊँगी, कोई बात नहीं। पानी ठंडा गर्म नहीं हुआ, मैं ठंडे पानी से नहा लूँगा, मगर मुझे जाना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, 9 बजे स्कूल पहुँचना है। उस पहाड़ी पर डिफेंसिव पोजीशन सुबह 6 बजे तक 60600 आवर्स में होनी ही है। तो दैट इज़ योर डिटर्मिनेशन टू अचीव योर रिजल्ट। तो आपको उसने बोला, GTO ने, कि ये स्टार्ट लाइन है, वो फिनिश लाइन है, 5 मिनट का समय है, ये रिसोर्सेज हैं, अपनी टीम सेलेक्ट करिए और आपने क्रॉस करना ही करना है। तो आपकी डिटर्मिनेशन है किसी तरीके से ही क्रॉस करना है। रास्ते में मान लो आपका कोई बल्ली गिर जाती है, GTO सीटी मारता, बोला ये बल्ली चलेगी, पानी में बहगी, कोई बात नहीं, बल्ली नहीं भी है तो भी हमको क्रॉस जाना है। अगर बल्ली पे चढ़ के हमने जाना था, नहीं होगा, जंप मार के जाएंगे। तो GTO बोलेगा जंप कैसे मारोगे, ये तो 10 फीट का डिस्टेंस है। बोलो सर मैं तैयार के जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ, रुक नहीं रहा मैं। अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? ये मेरी डिटर्मिनेशन है। विच इज द नेक्स्ट वन? करेज। मुझे जाना ही है।
अगर मान लो ये दरिया है, मेरी बल्ली दुश्मन की गोलाबारी से मान लो मेरा पुल बह गया है, मेरी बल्ली गिर गई है गलती से, तो मुझे तो जाना ही है, डिटर्मिनेशन है, मेरे में करेज है कि मैं तैर के जाऊंगा, मेरी सारी टीम मेरे साथ तैर के जाएगी, दरिया में तैर के जाएगी। एंड विच इज द लास्ट वन? स्टैमिना। कि हमने पीस टाइम में इतनी फिजिकल एक्सरसाइज करी है, पीटी करी है, गेम्स खेलनी है, एक्सरसाइजेज में हमने लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग करी है, हम 24-24 घंटे अपने पिट्ठू के साथ पहाड़ियों में पैदल चले हैं, हमने अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाया है। वो कहते आर्मी में कहते हैं द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सुना है आपने ये? द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू bleed in war. More you sweat in peace, less you bleed in war. यानी कि जितना आप पसीना पीस में बहाओगे, अपने अंदर स्टैमिना क्रिएट करोगे, अपने अंदर हिम्मत क्रिएट करोगे, आप लड़ाई में आपको उतनी ही कम चोट लगेगी। आप दुश्मन मान लो भाग रहे हैं और मान लो आपसे भागा नहीं जा रहा, दुश्मन की गोली आपको हिट करती है, या आप आउट एंड ओपन है तो दुश्मन का गोला फटता है, उसके स्प्लिंटर्स आपको लगते हैं क्योंकि आपसे भागा नहीं जा रहा, स्टैमिना नहीं है। मगर आप में स्टैमिना होता, आप भाग के कवर के अंदर आ जाते, ना आपको दुश्मन की गोली लगती, ना आपको दुश्मन का श्रैपनल लगता, तो मीन्स आपका खून नहीं बहता। तो ये 15 क्वालिटीज़ आपको समझ आई हैं? इसको इस वीडियो को दोबारा देखिए, इसके पहली वाली रिकॉर्डिंग्स भी देखिए, तो ये सब आपको इसका पर्सपेक्टिव समझ आ जाएगा। जैसे ही आपको ये 15 क्वालिटीज़ का पर्सपेक्टिव समझ आएगा, इसके बाद जब मैं आपकी ट्रेनिंग शुरू करूँगा, जो मैंने बोला आपको 50 वीडियोज़ वी गोइंग टू शूट विल बी अवेलेबल टू यू, आप उनको देखेंगे, फिर ऐसे ही जूम मीटिंग में आके मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी आपके दिमाग में डाउट्स होंगे उनको आप निकालेंगे। तो वहाँ पे अगर मान लो TAT करना है, WAT करना है, या हमने GTO के करने हैं, कोई ग्रुप टास्क की बात कर रहे हैं, या ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस की बात कर रहे हैं, इवन ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहे हैं, लेक्चरेट की बात कर रहे हैं, या इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने जब आपने जाके आपका इंटरव्यू होना है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो हम इन्हीं 4 फैक्टर्स और 15 क्वालिटीज़ को सामने रख के बात करेंगे। उससे 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो जो मेरा एफर्ट रहेगा, मेरा एफर्ट ये रहेगा कि ये 15 क्वालिटीज़ मैं आपको अपनी साइकोलॉजिकल टूल्स या साइकोमेट्रिक टूल्स या फिर न्यूरलिस्टिक लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के टूल्स मेरे पास हैं, उनके हिसाब से मैं आपको ट्रेन करूं कि ये क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर नहीं थी तो वो आ जाएं। ठीक है? और अगर मान लो आप उसको नहीं भी ला पाते हैं, बिकॉज इस वक्त अगर आप 18-20 साल के हो चुके हैं, तो आपकी जो बेसिक मेंटल मेकअप है उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो कम से कम अगर आपका बेसिक मेंटल परमानेंटली चेंज नहीं होता, तो कम से कम आपको इस तरीके से, कैन यू ऑल हियर मी? ओके, इस तरीके से आपको करेंगे कि आप कम से कम जब इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर या साइकोलॉजिस्ट या GTO कितना भी प्रेशर में डाले, टाइम के प्रेशर में डाले, एंग्जाइटी डाले आपके ऊपर, जितना भी आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, तो आपके माइंड से जो है वो आंसर करेक्ट ही निकलना चाहिए। ठीक है? दैट इज़ माई एम। नाउ बिफोर वी गो फर्दर, आई थिंक हमने काफ़ी बात कर ली है, थोड़ी बोरिंग बातें करी है ना अभी तक गीतांजलि? तो अभी आपको एक कहानी सुनने का, आकांक्षा कहानी सुननी है? प्रणव? ओके, कहानी मुझे बताइए, हु इज विंस्टन चर्चिल? हु वाज President of USA. He was Prime Minister of England. yes, he was Prime Minister of England and he was the leader of the World War II का हीरो। जब वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड लेड फोर्सेस जीत गई, तो सारा सेहरा उसके सिर पे आया ना, तो उसको बहुत बड़ा लीडर समझा जाने लगा। Isn't it? Yes, no? तो अगर आप लीडर मान लो, अस्प्रिया लीडर बन के आती है, कल SSB पास करके आती है, तो हम भी आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए कि बताइए आपकी सफलता का क्या राज है। या आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, गीतांजलि आपको बुलाएंगे ना कि गीतांजलि ने हमारे स्कूल का नाम चार चांद, दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर का नाम चार चांद लगा दिए। तो आप बताइए आपकी सफलता का क्या राज, बोलते हैं ना ऐसे। तो आप चाहोगे कि जल्दी जल्दी आप SSB को क्लियर करें और आपको लोग बुलाएं और आपको फेलिसिटेट करें और पूछें आपकी सफलता का क्या राज है। आकांक्षा? Yes, sir.
प्रणव, तो आप चाहेंगे कि उस सिचुएशन में आए? तो उस सिचुएशन में आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेचुरली एक अच्छा जो स्पीकर होता है वो, जैसे मैं भी अच्छा स्पीकर हूँ, आपको पूछूंगा एनी क्वेश्चंस। तो विंस्टन चर्चिल ने भी बोला, स्कूल के बच्चे बैठे थे, वहाँ पे बहुत सारी डिग्नेटरीज थी, पॉलिटिशियंस थे, स्कूल के टीचर्स थे, मैनेजमेंट थी, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने पूछा एनी क्वेश्चन। तो एक बच्चा, मान लो अस्प्रिया है या इवन गीतांजलि है, खड़े हो गए, बच्चा बोलता है कि सर यू हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, you are a victor of world war and you are a successful person, successful prime minister of England. Please tell us आपकी सफलता का क्या राज है? What is the secret to your success? Good question or bad question? Yes, sir. Bad question? Yes, sir. Good question. Good question. Now, what was the answer of Winston Churchill? Anybody you can tell me? Never give up. Okay, you attended my previous class, that's why you're saying. So the answer was, they say कि विंस्टन चर्चिल अपनी सीट से उठे, डाइस पे गए और वहाँ पे नेक्स्ट 2 मिनट्स वो सब लोगों से, जो बड़े सारे ऑडिटोरियम में वहाँ पे 4-5 हज़ार लोग बैठे हुए थे, सबसे नज़रें मिलाते रहे। यानी कि क्या नज़रें मिलाते रहे, मतलब क्या हुआ कि जो उन्होंने कम्युनिकेट करना था, ये आपको भी बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखिए। जो कम्युनिकेट करना था अपने ऑडियंस के साथ, वो उनसे नज़रें मिलाते रहे, रो बाई रो चलते रहे ऐसे करके, कोई 2 मिनट के करीब, ताकि जो लोग उनकी तरफ देख रहे थे उसमें से मैक्सिमम लोगों से उनकी नज़रें मिली। तो ये एक लेसन आप लीजिए, कम्युनिकेशन कैसे करना है, कि जब आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो पहले उस आदमी से या उस औरत से आप नज़रें मिलाइए, तभी आपका जो कम्युनिकेशन जो आपने बोला है वो इफ़ेक्टिव होगा। जब कम्युनिकेशन थ्रू हो गया तो उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया और वो बोले नेवर 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 नेवर, then he paused for few seconds and then he said give up, और बोल के वो अपनी सीट पे आके वापस बैठ गए। एंड द एंटायर हॉल वो सोच रहा था कि अभी हमको ये कोई गुरु मंत्र देने वाले हैं, सफलता का रहस्य, कि सफलता का क्या राज है। वो किसी गुरु मंत्र की तलाश में थे, जैसे आप भी एसएसबी की तैयारी के लिए आए हैं, आप भी आंसर्स ढूंढ रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि आंसर्स मत ढूंढो, मेरी OLQs को समझो जिसके ऊपर वो उनकी असेसमेंट हो रही है, और ये OLQs की कैसे असेसमेंट करते हैं वो समझो, रादर देन कि क्वेश्चन पूछा है उसका क्या आंसर है। तो ये पूरी जो गैदरिंग थी ये भी आंसर ढूंढ रही थी, तो आंसर की जगह तो ये कुछ और ही आ गया। उन्होंने तो बोला 15 बार रिपीट किया नेवर, और फिर बोला नेवर गिव अप। तो देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। किसी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। एंड देन उसके बाद वहाँ पे जो उनकी एक इंग्लिश टीचर थी जिसने शायद उनको भी पढ़ाया था, उसको समझ में आया कि विंस्टन चर्चिल ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि ज़िंदगी में कुछ भी करना है, गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने हार नहीं माननी है। आपने एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उसके पास जाना ही जाना है, और उसको पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लेसन विंस्टन चर्चिल ने दिया था। जो उस इंग्लिश टीचर को सबसे पहले समझ आया तो वो टीचर खड़ी हो गई, और खड़े होकर उसने ताली बजाना शुरू की, और जैसे ही उसने ताली बजाना शुरू की तो तब बाकी लोगों को भी समझ में आया कि ये इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही है। फिर बारी बारी करके सब लोग एक एक करके खड़े होते गए और तालियां बजती रहीं, और ये तालियां कई मिनट बजती रही। और आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आप जानते हो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी 1945 में, आज कम से कम 75 साल पुरानी बात है। आज भी दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ओवेशन टू एनीबडी इन द वर्ल्ड, एनी लीडर इन द वर्ल्ड, एनी इंडिविजुअल ऑफ दिस वर्ल्ड, ये रिकॉर्ड है जो विंस्टन चर्चिल को मिला अपनी इस बात पे। तो क्या मैसेज उन्होंने आपको दिया? नेवर गिव अप। अगर आज आपका लक्ष्य एसएसबी है तो आपने एसएसबी फतेह करने के लिए, क्रैक करने के लिए आपने कुछ भी करना है।
और वो कुछ भी करने का जो मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, कि जो आपको बाज़ार में अकेडमी सिखाती हैं या इंटरनेट में कुछ लोग आपकी कोचिंग करेंगे, आप उनके साथ मत जाइए। वो आपको आंसर्स दे रहे हैं, आप आंसर्स मत ढूंढिए, आप सिस्टम समझिए कि इसको क्रैक करने का मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे सवाल पूछ रहा है, वो जो क्वेश्चन बना रहा है वो किस पद्धति पे बन रहे हैं, तो उसी पद्धति पे उसका क्या आंसर होना चाहिए। अगर मान लो आप 100 कैंडिडेट्स हैं, एक पिक्चर आपको दिखाई है टीएटी के लिए, तो आप 100 स्टोरीज लिखेंगी। वो 100 की 100 स्टोरीज करेक्ट भी हो सकती हैं और 100 की 100 इनकरेक्ट भी हो सकती हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आप आइंस्टाइन को बोले कि आप हमें एक बढ़िया सा लिटरेचर में बढ़िया सी एक कहानी लिख के दीजिए, वो नेचुरली फेल होएगा। और उसी तरह से अगर आप शेक्सपियर को बोलेंगे कि आप हमें फिजिक्स की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाइए, तो वो भी फेल होएंगे। आइंस्टाइन को फिजिक्स ही चाहिए और उसको लिटरेचर ही चाहिए। उसी तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर मत ढूंढिए। अगर क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे तो आप पास नहीं कर पाएंगे। उसकी जगह पे अगर उसका मैकेनिज्म देखेंगे तो वो आप पास कर पाएंगे।